Dear students, welcome to my class Astrophysics. Today's topic is torque on a current carrying loop in uniform magnetic field. Let us consider a rectangular coil PQRS suspended in a uniform magnetic field of induction B. Let us I be the current flowing through the coil in the direction PQRS and theta be the angle which the plane of the coil makes with the direction of magnetic field. आप ये फिगर डायग्राम देखिए. It is one rectangular coil PQRS. It is suspended from a support in a uniform magnetic field. These are the field lines, magnetic field, uniform magnetic field. Here theta is the angle between the plane of this coil and the magnetic field. Here you observe another angle alpha. Alpha is the angle between the normal to the plane of the coil. पर प्लेन का जो एरिया हम लोग एरिया वेक्टर ए लेते हैं, that will be the direction of the area vector. That is alpha is the angle between the B vector जो magnetic field में जहाँ रखा गया है and the normal to the plane of the coil PQRS. इसमें जो फिगर डायग्राम इसमें one single turn दिखाया गया है यहाँ पर and later on we will consider n number of turns. तो हम लोग का टारगेट यही है जो इसका ऊपर जो डिफरेंट फोर्सेस काम कर रहा है because there are four part of this current carrying conductor, PQ part, QR part, RS part and SP part. ये जो four parts है, all these are placed in a magnetic field, therefore they will experience forces. तो resultant force कितना होगा हम लोग पता लगाएंगे and उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम होगा ना नहीं होगा, टॉर्क इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा. इट इज आवर टारगेट. एक्चुअली टॉर्क इसमें कुछ क्वेश्चंस के लिए टॉर्क मिलेगा. आवर टारगेट टू फाइंड आउट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. So let us F1, F2, F3, F4 be the forces acting on the four current carrying arms PQ, QR, RS and SP of the coil respectively. इसमें SP के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है that is the F4. क्यों इसे हम डायरेक्शन लिए थोड़ा बाद में पता लगाएंगे. F1 हो गया फोर्स ऑन द PQ, F2 is the force on the QR current carrying element and F3 is the force on the RS. इसमें फोर्स टोटल कंडक्टर जो है इसी को मिलता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं जो all the forces acting at the center of mass of this conductor. It is the center of mass of SP conductor. Let us suppose it is the center of mass of PQ conductor and it is the center of mass of the QR conductor and as well it is the center of mass of this conductor. तो there are four forces. सबसे पहले हम लोग F4 बारे में बात करेंगे. It is the F4 forces. तो हम लोग जब पहले इसका जो प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके थे फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग एलिमेंट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो होता है IL क्रॉस B होता है. इसमें I into S to P direction of this current, that is the direction of the current element. I into S to P vector cross B. तो अगर हम लोग इसके साथ क्रॉस करते हैं, this current element के साथ क्रॉस होता है तो एंटीक्लॉकवाइज ऑर्डर में हो रहा है. From the right hand rule you can say the direction of the force and that will be upwards. F4 will be upwards. वैल्यू कितना होगा हम देख लेते हैं. S to P जो लेंथ है इसको हम लोग ब्रेथ बता रहा हूँ, इसको हम लोग लेंगे B और P to Q that is the L length, again Q to R B length मतलब ब्रेथ and R to S that will be the L rectangular coil here. तो इसमें F4 कितना होगा ना I into S to P जो वेक्टर क्रॉस B, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा ना I into SP into B into sin of 180 degree minus theta. Theta is this angle, therefore the remaining angle is 180 minus theta. Here theta is the angle between the plane of the coil and the magnetic field B. तो इसके बाद हम लोग को sin of 180 minus theta that is also the sin theta. तो F4 is the I into SP. SP हो गया इसमें B
उसको breadth of this rectangular coil, and V, capital B, that is the magnetic field at that point. The direction of the force is in the direction of the SP cross B, that is in the plane of the coil, directed upwards. जो हम लोग यहाँ देखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का रूल से हम लोग मिलता है along this जो डॉटेड लाइन, इसको हम लोग एक्सिस भी बोल सकता हूँ कॉइल का, एंड अपवर्ड डायरेक्शंस में होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम लोग अनदर फोर्स की बात करेंगे. द फोर्स ऑन द आर्म QR is given by F2 vector is equal to I into QR cross B, and that is the F2 is equal to I into QR into B into sine of theta, where F2 is the I into B sine of theta. This is what Q into R, it is the direction of the current element, and B, angle theta is the here directly angle between the current element I into QR vector and the B. According to cross product rule, हम लोग यहाँ देखेंगे IL cross B, this is एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में हो रहा है, चाहे राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल सकता हूँ. डायरेक्शन होगा दैट इज द along this on the plane of this coil and downwards it will be the direction. तो इसमें हम लोग को मिला है F2 is I into QR cross B, this one. The direction of the force F2 is in the plane of the coil directed downwards. Since the forces F2 and F4 are equal in magnitude and acting in opposite directions along the same straight line, they cancel out each other. That is, their resultant effect on the coil is 0. ये दोनों फोर्स हम लोग अभी मिला है, F4 that is on the SP, another F2 that is on the QR. These two are equal and opposite, and they are also acting along the same line. Equal opposite जब फोर्स होता है कि सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 0. तो हम बोलते हैं ये दोनों को मिलकर के रिजल्टेंट नेट फोर्स 0 ट्रांसलेटर इक्विलिब्रियम है दोनों. Again, these two are acting along the same line, तो इसमें टॉर्क भी 0 होगा जब इसमें पार्टनर डिस्टेंस दोनों के बीच में 0 है. इसलिए ये दोनों जो है ना F2 एंड F4, these two are functionless in this case. इसके चलते ना तो कोई नेट टॉर्क मिलता है ना तो कोई फोर्स मिलता है इसमें. अभी बाकी हम लोग देखें, अभी F1 एंड F3 की बात करेंगे. जो F1 देख रहे हैं that is force explained by the PQ. इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द B दिस एंड करंट एलिमेंट डायरेक्शन इज द P to Q, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री. हम लोग इसमें जब क्रॉस करेंगे I into P to Q वेक्टर क्रॉस B, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल हम लोग पता चला जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड्स. सिमिलरली हियर आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F3, इसमें करंट एलिमेंट दिस वन, B दिस, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसमें भी एंगल 90 डिग्री. तो IL क्रॉस B मतलब I into R2S वेक्टर क्रॉस B, जे क्रॉस प्रोडक्ट रूल एक क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स. तो F1 हो जाएगा आउटवर्ड्स एंड F3 हो गया इनवर्ड्स. तो ये दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शंस. अभी हम देखेंगे दोनों का वैल्यू भी सेम होगा. कैसे सेम होगा दोनों का वैल्यू ना, इसमें F1 की बात हम करें तो I into P to Q वेक्टर क्रॉस B, that is F1 I into numerical value PQ into B sine of 90 degree, because angle between the IPQ factor current element and the B factor that is 90 degree. तो sin 90 की वैल्यू 1 होता है तो फोर्स होता है इतना, that is the BIL और ILB, where PQ is equal to the L length of this PQ arm, PQ side of this rectangular coil. According to Fleming left hand rule, the direction of the force is perpendicular to the plane of the coil directed outwards. हम थोड़ा पहले बार देख चुके हैं जो outwards होगा. And force on the arm RS is given by F3 is equal to I into RS cross B. तो I into RS का वैल्यू हम लोग L लेंगे, इसमें B into sine of 90 degree here also. Therefore, the value of the F3 also the same, that is the BL ILB. Since RS perpendicular to B, therefore we take sine of 90 degree and that value of the sine of 90 degree the 1, तो इतना होगा. The direction of this force according to Fleming's left hand rule is perpendicular to the plane of the coil and directed inwards. The forces acting on the arm PQ and RS are equal, parallel and acting in opposite directions, having different lines of actions. These forces form a couple
the effect of which is to rotate the coil in the anticlockwise directions about the dotted line as axis. इसमें two equal opposite force acting on the same system, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, जैसे दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम था, इसीलिए दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 था. हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट 0, तो ये दोनों मिलकर के कपल बनाते हैं. कपल का स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है बाय द टॉर्क. तो अगर हम लोग ऊपर से इसका व्यू देखें, ओवरव्यू देखें, तो ओवरव्यू देखेंगे तो हम लोग को ये जो देखो ऊपर से अगर देखा जाए तो दैट इज द S2P करंट इन दिस सेक्शन इधर आ रहा है, S2P. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस B वेक्टर एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल. थीटा इज द एंगल. नाउ P पॉइंट मान लीजिए इधर जो है F1 फोर्स काम कर रहा है इस साइड में, ऊपर से हम लोग देख रहा हूँ F1 इज द BIL, और S पॉइंट में कितना फोर्स काम कर रहा है F3, दैट इज आल्सो BIL. These two are equal and opposite in directions, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है. S to P जो डिस्टेंस, that is the breadth, that is the B. This angle is the theta, this angle theta, therefore this angle is theta. Therefore B cos theta is the perpendicular distance between F1 and F3. ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B cos of theta. तो हम लोग जो जानते हैं टॉर्क क्या होता है, एनी वन फोर्स, चाहे ये चाहे वो है, F1 चाहे F3, into perpendicular distance between two forces, that is the measurement of the torque. तो अभी हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे, and that is our target. What will be the torque when this current carrying loop placed in a uniform magnetic field? तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क फोर्स F3 and F1 acting on the arm PQRS will be shown in the figure seen from the top views हम लोग देखेंगे. तो ST, there is the PS cos of theta, there is the B cos theta, is the perpendicular distance between F1 and F3. तो tau कितना होगा, any1 force into perpendicular distance between two forces. तो any1 force हो गया I into L into B and perpendicular distance B cos of theta. तो जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, I into B, L into B एक साथ में लिखे स्मॉल b, and it is nothing but the area of the loop. तो हम लोग इसमें मिलेगा कितना, IBA cos of theta, where I am saying again theta is the angle between the plane of the coil and the magnetic field. तो tau कितना होगा, IBA cos of theta, since the L into B small b, that is the area of the coil PQRS. अभी हम लोग एक सिंगल टर्म के लिए निकाले हैं. अगर n नंबर ऑफ टर्म्स जनरली हम लोग लेते हैं, rectangular coil has n turns, then it will be NIBA cos of theta, where theta is the angle between magnetic field and the plane of the coil. Let us normal drawn on the plane of the coil makes an angle alpha with the direction of the magnetic field. तो theta plus alpha कितना होगा, 90 डिग्री होगा. थीटा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा. तो cos of theta का हम लोग लिख सकता हूँ cos of 90 डिग्री माइनस अल्फा. Therefore cos of theta is the sin of alpha. That means इसमें जो हम बात कर रहे थे, फिगर डायग्राम देखिए यहाँ पर, इसमें अगर हम लोग ये जो नॉर्मल ड्रॉ करें, दैट इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. तो B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर एंड A वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल अल्फा. तो अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि इट इज नॉर्मल, तो अल्फा प्लस थीटा दैट इज 90 डिग्री. तो थीटा इज द 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ अल्फा हो जाता है. तो फॉर्मूला को हम जब रिराइट करेंगे, इसमें फॉर्मूला था बीना कॉस ऑफ थीटा था, याद रखने के लिए हम लोग यूज करते बीना, BINA, बीना कॉस थीटा था. तभी हम लोग को अल्फा का टर्म में लिखेंगे तो बीना साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा. तो हम लोग इसको बीना साइन ऑफ अल्फा, ये जो B को हम लोग अलग रख देते हैं इधर, NIA, इट इज द नाम एम्पियर टर्न्स इनटू एरिया बोला जाता है इसमें. तो ये इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक करंट कैरिंग लूप दैट बिहेव्स लाइक ए जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल. तो डाइपोल मोमेंट उसका होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द एरिया इनटू करंट. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो इनटू n, तो NIA, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है इक्विवेलेंट टू वन मैग्नेटिक डाइपोल. तो मैग्नेटिक डाइपोल का स्ट्रेंथ होता है डाइपोल मोमेंट से. तो एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे M is equal to NIA, it is known as the magnetic moment of the rectangular current loop.
तो इस हिसाब से हम लोग किसको लिखेंगे, एम बी साइन ऑफ अल्फा। अदरवाइज इट इज ऑल्सो वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वाइडली यूज्ड, ये फॉर्मूला को ज़्यादा यूज करेंगे इस फॉर्मूला से भी। तो बीना साइन ऑफ अल्फा, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो एन आई ए क्रॉस बी, और हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। मॉड की बात करो तो इतना हो जाएगा मॉड मॉड्यूलस इन दिस फॉर्म। इट इज द मेन फॉर्मूला, इससे हम लोग डिफरेंट वे में लिख सकता हूँ। तो ए क्रॉस बी जो होगा, जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का, दैट टॉर्क विल बी अलोंग द एक्सिस होगा। हम लोग ओपनली बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रैक्टिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस नहीं है, दीज आर द ऑर्डर। इसमें टॉर्क एक होता है एक्सियल वेक्टर, डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें जो कॉइल का जो एक्सिस है उस बराबर होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, इन दिस केस दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स अलोंग द एक्सिस होगा। ए क्रॉस बी आप कीजिएगा तो अलोंग द एक्सिस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल जो है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी। तो ये इन दिस केस ए क्रॉस बी होता है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जा रहा है तो अपवर्ड्स होता है, और इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्शन होता है अलोंग द एक्सिस। हम वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वही ज़्यादा जरूरत है। तब हम ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला में बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, इसलिए बार बार बताता हूँ। व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन द plane of the coil and the magnetic field, and what is the alpha, that is angle between the area vector of the coil and the magnetic field। तो दोनों अल्फा एंड थीटा दोनों थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, कंफ्यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिस टॉर्क टेंड टू रोटेट द coil about its own axis, its value changes with angle between the plane of the coil and directions of magnetic field। मतलब for the different positions, since it is the angle dependent and current dependent also, तो जब करंट ज्यादा होगा तो भी टॉर्क ज्यादा होगा, और जब साइन अल्फा अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगा तो भी टॉर्क ज्यादा होगा। मतलब इसमें जो टॉर्क कितना होगा, करंट जितना ज्यादा होगा इतना ही कॉइल में ज्यादा टॉर्क होता है। एट द सेम टाइम एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जब इसमें थीटा का वैल्यू सपोज 0 डिग्री, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एट दैट टाइम वी कैन कंसीडर द अल्फा वैल्यू दैट इज 90 डिग्री, तो साइन ऑफ अल्फा इज द 1, तो टॉर्क कितना होगा ना, बीना होगा, BIN है, that is the maximum torque। That means if the coil is set with the its plane parallel to the direction of the magnetic field, प्लेन जब पैरेलल होता है थीटा 0 डिग्री होता है, लेकिन अल्फा होता है 90 डिग्री, उस टाइम टॉर्क होता है मैक्सिमम। If the coil is set with the plane perpendicular to the direction of the magnetic field B, जब परपेंडिकुलर होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है, लेकिन तब एरिया वेक्टर पैरेलल होता है बी के साथ, तो अल्फा तब 0 डिग्री होता है, तो उस टाइम टॉर्क भी 0 होता है, दैट इज द मिनिमम टॉर्क। तो ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट करिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका एक्सपीरियंस हो गया बिना साइन ऑफ अल्फा से, बिना कॉस ऑफ थीटा। हियर वी कंसीडर इट इज वन रेक्टेंगुलर लूप, but it is equally, this formula is equally valid for circular loop also or any other loop also। हम लोग उसमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, साथ साथ कितना एरिया चाहिए, और इसमें करंट कितना जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उस हिसाब से हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। हम लोग इसमें डिराइव किए हैं, वी कंसीडर इट इज वन रेक्टेंगुलर लूप। फिर हम बता रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला इक्वली वैलिड फॉर डिफरेंट शेप ऑफ लूप। इसका इंपॉर्टेंस सही है टॉर्क का। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में रेक्टेंगुलर कॉइल भी यूज किया जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और सर्कुलर कॉइल भी यूज किया जाता है, दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और ये जो फॉर्मूला हम लोग, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टू मेक वन गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जितना ज्यादा करंट इतना ही ज्यादा टॉर्क होगा, कितना ही ज्यादा एंगुलर मूवमेंट होगा, तो वो हम लोग कंपेयर करके मेजर करके निकाल सकते हैं कितना करंट जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल डिजाइन बनाएंगे इन गैल्वेनोमीटर। तो आज एक क्लास इतना ही है, छोटा सा एक क्लास था एक।